of India. Na? So we have seen the India. We have divided it in India into various categories, starting from the Himalayas. Na? Himalayas, peninsular, the Great Plains, Western Ghats, Eastern Ghats, Western Coastal Plain, Eastern Coastal Plain. Na? So we have seen that. Now today we will first physiography division, that is the Himalaya part ko we will do. Okay? So in the Himalaya we have what we have to see. In fact, in this first we have to see, we should have a clear idea about trans-Himalaya. Trans-Himalaya. What do you understand by the trans-Himalaya? You have to see this. Number second, how the trans-Himalaya was formed. Number third, what are the characteristics of the trans-Himalaya? Simple, बहुत simple है, कुछ नहीं करने के लिए. आप उसका formation, if you know the formation of the trans-Himalaya, you know the characteristic क्या क्या होगा. Then in the trans-Himalaya, you have to locate some important ranges. Example, your क्या क्या ranges है? For example, Karakoram Mount ranges. Then Jaskar, then जास्कर के बाद में काराकोरम, जास्कर एंड लद्दाख. These ranges you have to just locate. और इसका कुछ importance है क्या, extension कुछ है क्या नहीं, that we have to see. Then second we have to see the Great Himalayas. The Great Himalayas. Great Himalaya, we will see the divisions of the Great Himalaya into three mountain ranges. Okay? These three mountain ranges is number one, your Inner Himalaya, or we call it as a Greater Himalaya or Greater Himalaya. Then Middle Himalaya. Then third is your outer or lesser or more popularly Shivalik. ठीक है. Apart from that, we also have to see the hills of the northeast, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल hills. Here we will have the hills, Mizo hills, Naga hill, Manipur hill, ना, ये सब हम लोग को देखना है. Plus we also have to locate this आपका ये दफला hills, मिशमी hills, ठीक है, या अबोर hills, वो सबको लोकेट करना है. ये सब पूर्वांचल हिल्स में आ जाएगा. ठीक है. तो ये होगा आपका फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, दिस डिवीजन. आफ्टर दिस वी विल सी द पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है. तो कैसे करेगा? फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांस हिमालयास एंड द रेस्ट ऑफ द हिमालय. ठीक है. तो वी ऑलरेडी डिड दिस पार्ट ड्यूरिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट, प्लस उससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी हमने हल्का सा किया था, बट यहाँ फिर थोड़ा सा और लेवल में ले जाएगा. सो वी हैव सीन ड्यूरिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स दैट इंडियन पेनिनसुलर, रिमेंबर दिस इंडियन पेनिनसुलर, दिस वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना. ठीक है. And here we used to have our which plate? Eurasian plate. We have a Eurasian plate, both continental. In between this we have one sea, which was earlier very narrow. Earlier it was very narrow and shallow. Okay? But it was opened up. And two land forms were created. If you remember, one is Gondwana land and another was your Angara land, and sea was more opened. But later on, then again
the Indian plate start drifting toward the north. Are you clear about this? So this was your Eurasian plate and this was your Indian peninsular plate. ठीक है, this start shifting or move toward the north. ठीक है, it moves and on the way it comes under the influence of किसका अंदर में आ गया था? हॉट स्पॉट. रिमेंबर, हॉट स्पॉट आ गया था, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज ए क्रैक डेवलप्ड हियर. ठीक है, क्रैक्ड. इसके बाद ये बाद में टूट गया. इसके बाद यहाँ पर देयर वाज ए डिपोजिशन ऑफ वास्ट वसाल्टिक लावा. यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, देन इट स्टार्ट अगेन मूविंग अपवर्ड एंड इट start collided with the Eurasian plate. ठीक है, now you need to know before the collisions, before the actual collision between the Indian plate and the peninsular plate, in between this we have the Tethys Sea here, narrow Tethys Sea है ना, जिसको हम लोग this is the belt of Tethys Sea. Tethys Sea. ठीक है, and this is nothing but डिप्रेशन. ये एक डिप्रेशन मतलब से गड्ढा अंदर में. तो देयरफॉर दिस बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट वी हैव द टेथिस ओशियनिक प्लेट. आर यू क्लियर अबाउट दिस? व्हेन इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव्स टुवर्ड इट विल पुश द ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट एज वेल. आगे ओशियनिक कॉन्टिनेंटल को धक्का रहेगा. देयरफॉर दिस टेथिस प्लेट यहाँ में जो नीचे है that go because it is more denser, this is more lighter, the Tethys wala sea will go beneath the Eurasian plate. Are you clear about this? It will go and जब वो नीचे चला जाएगा तो in the process it will fold, ये वाला fold होगा थोड़ा से हल्का से फर्स्ट. सेकेंडली जो ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट भी फोल्ड होगा और in the process it will lifted upward, resulted into the fold mountain. Fold mountain बनेगा कि नहीं बनेगा? However, क्योंकि it is a collision between the continental and the oceanic plate will go very deep inside the land. Getting my point? And this will melt. हमने देखा था melt होगा, तो therefore there will also the resultant of the volcanoes निकलेगा. Are you clear about this? So therefore the first important mountain ranges was formed due to the Tethys oceanic plate and the Eurasian oceanic plate, and that resulted into the formation of the first mountain ranges. बनेगा, and that mountain ranges is known as your Karakoram. कहाँ है Karakoram? trans-Himalaya. First, this will be your first trans-Himalaya. हिमालय अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है. हिमालय इज येट टू बी फॉर्म, बिकॉज ये यहाँ टकराएगा तब हिमालय फॉर्म होगा. अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है. अभी जो माउंटेन फॉर्म हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलेशन बिटवीन द ओशियनिक प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, बिकॉज ऑफ दिस. ये भी जा रहा है जब पुश करने का बाद, बिकॉज ऑफ विच जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वॉल्केनोस होगा. यहाँ पर बहुत सारा वॉल्केनिक. तो देयरफॉर वी से ट्रांस हिमालय इज ए वॉल्केनिक इन नेचर. वॉल्केनो होगा ना, इस सॉइल का कलर भी ब्लैक होगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? स्पेशली काराकोरम माउंटेन रेंजेस वाला. काराकोरम मीन्स इट इज ब्लैक. वहाँ का लोकल लैंग्वेज में काराकोरम का मतलब है काला. ठीक है, तो देयरफॉर ट्रांस हिमालय इज ए ब्लैक वन, काला वाला. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन द प्रोसेस देयर विल बी ए 3 माउंटेन रेंजेस, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख. यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस फॉर्मेशन हो गया. तो देयरफॉर अगर हम पूछेगा कि कौन सा माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट है, रिमेंबर ट्रांस हिमालय इज द ओल्डेस्ट. ट्रांस हिमालय का बाद में हिमालय आएगा. ठीक है, देन नाउ द इंडियन प्लेट विल मूव फादर. यहाँ पे सबसे पहले बिकॉज इट इज प्रोजेक्टेड. ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है, ये थोड़ा कम है, प्लस इसका मूवमेंट जो थोड़ा बहुत इस तरफ में है. द इंडियन प्लेट इज नॉट मूविंग डायरेक्ट पैरेलल, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वो थोड़ा से ऐसे करके, बहुत बताया ना पुष्पा वाला. ठीक है, थोड़ा से ऐसे है, ऐसे को इस तरफ से मूव कर रहा है.
the movement of the Indian peninsula changes. First when it was moving in this way. After colliding इसका मूवमेंट फिर क्या होना शुरू हुआ है, इस तरफ मूवमेंट हुआ है, दो बार डिफरेंट डायरेक्शन लिया है. और ये डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्विक्शनल करंट इनसाइड द अर्थ. कन्विक्शनल करंट का डायरेक्शन जैसे होगा उसका डायरेक्शन भी ऐसे चेंज होगा. तो बिलियंस ऑफ द ईयर में द डायरेक्शन ऑफ द कन्विक्शन करंट कंटिन्यूसली चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग द कन्विक्शनल करंट वाज फ्रॉम टुवर्ड द पोल्स, देयरफॉर दिस land masses, Pangea was broken, it was divided and they were pulling towards the pole. Now the convectional current changes again its direction, now it is coming together. In the future again another direction may be there. So at the first the Indian plate move in this direction and first it collide here, यहाँ पे collide होगा, before colliding ये बना. यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यहाँ पे जब कोलाइड हुआ, इट विल गिव द मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम पुश इन द वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्ट में होगा. आर यू क्लियर? दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन वी ड्रॉ द इंडिया, वी ड्रॉ द हिमालय लाइक दिस. हिमालय ऐसा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुश हुआ है, सो देयरफॉर इट पुश्ड, सो ये यहाँ तक अपलिफ्ट हो गया. काराकोरम ट्रांस हिमालय को भी और आगे धकेल दिया. गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद में यहाँ करने के बाद में नाउ इट चेंजेस इस डायरेक्शन, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है और ये थोड़ा इस तरफ में जाने के लिए कोशिश करता है. देन व्हाट हैपन, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ होगा और ये फिर थोड़ा सा ऐसे होके यहाँ भी पुश करना शुरू होगा. ये दोनों कोलाइड नहीं हुआ है अभी तक. बीच वाला द सेंटर पार्ट, मिडिल पार्ट इज स्टिल नॉट कोलाइड येट. ठीक है. हियर बिकॉज ऑफ दिस एक डिप्रेशन जियोसिंक्लाइन क्रिएट हुआ है. जियोसिंक्लाइन मतलब एक बड़ा दो लैंड मास का बीच में जो ऐसा गद्दा जैसा है उसको जियोसिंक्लाइन बोलता है. एंड दिस इज थेटिस जियोसिंक्लाइन, एंड दिस जियोसिंक्लाइन इज नाउ बिकॉज ऑफ द इरोशनल बिलियंस ऑफ द ईयर्स. यहाँ से इरोशनल डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से इरोशनल डिपॉजिट हुआ है, यहाँ में पूरा इरोशनल डिपॉजिट होके बैठा हुआ है. एंड दे आर नाउ वेरी मड्डी, स्टिकी होके बैठा हुआ है. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ स्लोली जब ये और मूव करना शुरू हुआ है तब देन दिस पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विल नाउ स्टार्ट अपलिफ्टिंग दिस जियोसिंक्लाइन एरिया. उसको धीरे धीरे जियोसिंक्लाइन को अपलिफ्ट करना शुरू होगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो जब यहाँ पे जब पूरा फोर्स आ जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टिकी माउंट्स, रॉक भी कंप्लीटली नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ का जो पुश करेगा उसको पूरा बहुत ऊपर तक पुश करेगा, मतलब अच्छा से फोल्ड होगा. पत्थरों से तो टूट जाना था, लेकिन ये पत्थर नहीं है बोल के थोड़ा पानी के अंदर में था, इसलिए वो अच्छा से फोल्ड होगा और बहुत ऊंचा तक रेज होगा. दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया का ये वाला पार्ट एरिया में जो माउंटेन्स लुक होगा, दे विल हैव ए वेरी हाईएस्ट माउंटेन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंचनजंगा यहाँ पे है, हाईएस्ट माउंटेन, हिमालयन माउंटेन पीक इन इंडिया. माउंट एवरेस्ट यहाँ पर होगा. ये कॉर्नर में भी है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट होता है क्योंकि ये अच्छा से फोल्ड हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? तो देयरफॉर इस तरह से बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलेशन दिस हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इज मोर टुवर्ड द पोल एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर. ये दिमाग में याद रखना है. क्यों दिस इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर? बिकॉज इट्स हैव द मैक्सिमम पुश, मैक्सिमम पुल. दिस ईस्टर्न हिमालय इज मोर नियरर टू द इक्वेटर बिकॉज मिनिमम फोर्स वॉज एक्सर्टेड हियर. ठीक है. एंड इसका एक्सटेंशन आगे जाके यहाँ पे गारो, काशी और जयंतिया हिल्स हो जाता है. ठीक है. एंड फोल्ड बाद में ऐसे होके ऐसे हो जाता है फोल्ड. एंड जहाँ पे जो हाथ दोनों निकला था ये वाला माउंटेन ऐसे होके हो जाता है. ठीक है. और यहाँ पे जहाँ पे ये बैंड हो गया, ये वाला बैंड हो गया, ये वाला बैंड हो गया, उसको हम लोग बोलता है सिंटैक्शियल बैंड. समझ में आ गया? बस इतना कहानी जानना है अभी के लिए हम लोग को जीएस के लिए. इससे ज़्यादा हम लोग थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एक बार फिर से हम हल्का सा बनाए. हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है काराकोरम का कैरेक्टरिस्टिक जानना है. सॉरी, काराकोरम होता है ट्रांस हिमालय कैसे फॉर्मेशन हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना. तो देयरफॉर हम जान गए कि ट्रांस हिमालय इज दी
आउटकम ऑफ द ओशनिक प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. ठीक है, बिकॉज इट इज अ कोलिशन बिटवीन ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट, इट रिजल्टेड इनटू द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनोस. तो देयरफॉर काराकोरम माउंटेन रेंजेस दे आर द ब्लैक बसाल्टिक रॉक है वहाँ पर, ये वॉल्केनो होने का कारण. इसके बाद में द इंडियन पेनिनसुला और आगे बढ़ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन वेस्टर्न पार्ट दे फर्स्ट कोलाइड विद ए मैक्सिमम पुश, मैक्सिमम फोर्स, देयरफॉर ऊपर नॉर्थ की ओर में ज़्यादा चला जाता है. ठीक है, देन ईस्टर्न पार्ट आता है जहाँ पे मैक्सिमम पुश मिला है, दोनों दो आर्म्स है वो बैंड हो जाता है. ठीक है, वो बैंड को हम लोग बोलता है सिंटेक्शियल बैंड. बस इतना हम लोग को जानना है. गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट कोलाइड रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट हिमालय, जिसको बोलते हैं हम लोग इनर हिमालय ना, इनर हिमालय वो फॉर्मेशन है. फिर और एक बार कोलाइड करेगा, दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द मिडिल हिमालय, और थर्ड कोलाइड होगा तो शिवालिक माउंटेन रेंजेस. बस इतना हम लोग को लिखना है. ठीक है, राइट डाउन. कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आस्क. हाँ, हिमालयाज वेर फॉर्म्ड ड्यू टू दी continental collation, continental collation. Now from here the Indus river will flow this way and it will flow between which two mountain ranges? Ladakh and the Jaskar. The frequent asked questions. ठीक है. Now second river, important river, ये it was recently in the news, Syok. ठीक है, here between the Ladakh and the Karakoram, here one river is there. Find out the name of that river. Syok, Syok river. This is your Indus river. ठीक है, मिला Syok. The three important rivers came out from here. This is your Xiangfu river. Xiangfu river मतलब it is ब्रह्मपुत्र ना. In India it is known as ब्रह्मपुत्र. में इतना बड़ा रिवर नहीं है. एक इम्पोर्टेंट रिवर है श्योक, इसलिए कभी कभी यहाँ पूछ देता है. यहाँ से पाकिस्तान एरिया से देर आर मोर रिवर्स आर देयर बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. इंडिया का तरफ से श्योक इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, दिस इज ट्रांस-हिमालय. राइट डाउन. They formed prior to the formations. लद्दाख का ये में देखो बाउंड्री बिटवीन तिब्बत में देखो, बड़ा वाला में देखो, छोटा में नहीं दिखाई नहीं देगा. पेंगोंगसो लेक. ऐसा ऐसा अगर लंबा सा होगा ऐसा ऐसा. पेंगोंगसो मेरा. दूसरा उसका नीचे में देखो सो मोरारी. सो मोरारी जास्कर का जस्ट ये सामने में ही है. सो मोरारी लेकिन 3 इडियट का शूटिंग करने जगह लद्दाख में देखा है ना लेक को. पेंगोंग था ना सो मोरारी था. पेंगोंग था. हाँ पेंगोंग दोनों बराबर ही है लैंडस्केप ऑलमोस्ट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन जो आएगा ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलाइन लेक बोल के आपको आएगा. ऑप्शन में देगा चिलिका लेक, पुलिकत लेक, सो मोरारी लेक, पेंगोंगसो लेक या वुलर लेक. इस तरफ से आएगा.
तो इसीलिए आपको क्वेश्चन आता है, अगर आप कंसेप्ट नहीं होगा तो यू विल फाइंड कि सोमोरारी लेक और पोंसो लेक तो लद्दाख में है और वो तो ठंडा एरिया है, तो वहाँ में तो सलाइन लेक तो होने का चांस है ही नहीं, तो यू माइट बी रॉन्ग। तो ये दो आता है आपको, क्या सलाइन लेक है ना क्या है, इट इज़ ए, ठीक है, इसको लिखो। जस्ट आप उसमें पॉइंट करके सो मोरारी इज अ सलाइन लेक लिखो और पेंगोंग सो इट इज ऑल्सो सलाइन लेक। नेक्स्ट, हेमिस नेशनल पार्क देखो, इसमें देखो बायोग्राफिक वाइल्ड लाइफ वेटलैंड में देखो लद्दाख में एक ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोग्राफिक जोन वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड बोल के एक अलग सा है, उसमें सब मिलेगा एक साथ में, है ना। हेमिस ना, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, सबसे बड़ा है ये, ठीक है, और वर्ल्ड में भी सेकेंड ना थर्ड नंबर में आता है बड़ा।